Hello, Namaste, Namaskar, Pranam, Shashyakal, Khamagani to my YouTube family. I know that I took a long break, and after long time, I am coming back to YouTube. So, I'm getting lots of questions about this topic, which I'm going to talk about today on YouTube, on Instagram, on Facebook, on WhatsApp, because every cabin crew experience asking me this question 100 times. So that's why I decided to make this video, and today in this video I'm going to clear your all doubts. So do you want to know about this topic? So this topic is about cabin crew salary. I got hundreds of questions. How much salary cabin crew gets, and how much salary they can expect in the first month or in the beginning as a fresher. So today in this video, I'm going to clear all your doubts. So without delay, let's begin the video. But I would like to remind you all again, if you haven't subscribed my YouTube channel yet, so go and click on the subscribe button, and also do not forget to like, comment and share. So first of all, I would like to tell you, if you want to join as a cabin crew in India, you should always go for a full service airline. क्योंकि full service airline की salary and low cost airline की salary में बहुत ज़्यादा huge difference होती है. जैसे कि I have joined the full service airline Vistara, then Air India, so I don't have much knowledge about low cost airline salary, but still I know that लो कॉस्ट एयरलाइन की सैलरी से फुल सर्विस एयरलाइन की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनल लेबर अलाउंस होती है, हमारा जो एडिशनल फ्लाइंग अलाउंस का काउंट होता है, हमारे जो स्टैंड बाय अलाउंस होते हैं बहुत ज़्यादा होती है. So that's why I will always recommend you or suggest you to join a full service airline. क्योंकि फुल सर्विस एयरलाइन में आपको फ्लाई भी बहुत कम करनी होती है, क्योंकि जब व्हेन आई वाज इन विस्तारा और व्हेन आई वाज इन एयर इंडिया में थोड़ा ड्रास्टिक चेंज आ गए थे, बट विस्तारा में वी यूज टू मैक्स 3 सेक्टर इन ए डे. बट आप देख सकते हो कि लो कॉस्ट एयरलाइन लाइक स्पाइस जेट और इंडिगो और आकाशा, मे बी यू हैव टू डू एवरी डे लाइक 4 or 5 सेक्टर्स. और विस्तारा में यूजुअली 2 सेक्टर्स ही होता था. लाइक इफ वी आर व्हेन आई वाज डूइंग डोमेस्टिक फ्लाइट्स, व्हेन आई यूज्ड टू डू Delhi Chandigarh Delhi, then coming back home next day evening reporting, it was like that. तो जब एयर इंडिया में आए 3 and 4 सेक्टर्स था, बट luckily I was trained on Boeing 787. That's why I didn't do much domestic flights, so that's why I was quite happy in Vistara, in Air India also. But people who all are trained on only Airbus, so I can feel their pain. So I'm so sorry guys, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने शायद मुझे वो पेन नहीं देना चाहता था. That's why I got trained on Boeing 787 in Vistara only. So that's why I'm very blessed and very thankful to God and to myself as well, because I did hard work, I did struggle. That's why I'm here now. So as you all know, currently I'm working as a cabin crew with an international airline, that is the flag carrier airline of Finland, Finnair. But prior to this, I have worked with the best airline of India for so many consecutive years, that is Vistara for 2 years. Then after merger, I transferred to Air India. So today I would like to discuss the salary for Vistara as a fresher or as experience or एयर इंडिया. तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट विस्तारा के सैलरी के बारे में. सो आई जॉइन विस्तारा एज अ कैबिन क्रू इन द ईयर ऑफ 2022 एज फ्रेशर. तो हमारी जो सैलरी होती है, आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. फर्स्ट पार्ट होती है जो फिक्स सैलरी, जो मिनिमम विस्तारा में था 40 आवर्स. एयर इंडिया में भी 40 आवर्स ही था फॉर कैबिन क्रू, बट फॉर SCC एंड फॉर कैबिन मैनेजर इट्स डिफरेंट. तो विस्तारा में फॉर 40 आवर्स वी यूज टू गेट एज अ फ्रेशर 29,000 रुपीज़, जो कि मतलब आप महीने में 40 आवर्स आपको फ्लाई करनी होती है. अगर आप 40 आवर्स से कम भी करते हो, सपोज आपने इस महीने में 10 घंटा फ्लाई किया, बाकी आपके लीव्स थे,
आपकी स्टैंड बाई स्टे, अगर आपने 20 आवर्स फ्लाई किया, आपने अगर 35 आवर्स फ्लाई किया, आपने 39 फ्लाई किया, या आपने 1 घंटे भी फ्लाई नहीं किया महीने में, फिर भी आपका जो फिक्स पेमेंट है तो 29,000 एज ए फ्रेशर वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। देन उसके बाद आपकी आते हैं स्टैंड बाय अलाउंस। जैसे कि आपको सबको पता है, एज कैबिन क्रू वी ऑल हैव टू डू इन इंडिया एयरपोर्ट स्टैंड बाइज। सो स्टैंड बाय क्या होते हैं, यू नीड टू गो टू द एयरपोर्ट, यू हैव टू स्टे देयर फॉर certain time. Then if somebody is fails to report for their duty, or somebody has reported sick, or somebody like anything happened to them while coming for the flight, so in place of that crew you need to go for the flight. So they will pull you out suddenly and they will tell you that you need to go for this flight. So that's how we used to do स्टैंड बाय। सो विस्तारा में एक स्टैंड बाय का अलाउंस होता था 350 रुपीज़, और विस्तारा में 4 आवर्स से ज़्यादा आपकी स्टैंड बाय नहीं होते थे। सो मैक्स टू मैक्स 4 आवर्स, बट कभी कभी 3.5 का भी या 1.5 का भी स्टैंड बाय होता था, बट हमें अमाउंट सेम मिलता था, डेट इज़ 350। फिर आते हैं आपकी लेओवर अलाउंस के ऊपर। लेओवर, डोमेस्टिक लेओवर का अलाउंस हमारे विस्तारा में होता था 750 रुपीज़, बट उसमें आपकी सारे फूड, और स्पेशली हमें ओनली ताज होटल मिलता था विस्तारा में, एज यू ऑल नो दैट। सो इन एवरी सिटी वी यूज्ड टू गेट ओनली ताज होटल। द हॉस्पिटलिटी एंड जो सर्विस होते हैं ताज की, इट्स नेक्स्ट लेवल। तो 750 भी मिलता था, वी वर वेरी ओके विद दैट, बिकॉज क्योंकि आपको वो लग्जरियस लाइफ ताज में आपको मिलता था। देन आपकी आवर्स के ऊपर आते हैं। जैसे कि आपका मिनिमम आवर्स होते हैं 40 आवर्स फ्लाई करना, बट आप जब कैबिन क्रू होते हो 40 आवर्स से ज़्यादा ही फ्लाई करते हो। जैसे कि किसी मंथ आपका 60 आवर्स, किसी मंथ 70 आवर्स, किसी मंथ 80 आवर्स, किसी मंथ 90 आवर्स भी हो जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपकी जो सैलरी होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। जैसे कि 40 to 50 आवर्स तक आपकी अलग काउंट होते हैं, 50 to 60 आवर्स तक अलग काउंट होते हैं, 70 to 90 आवर्स तक अलग काउंट होते हैं। सो विस्तारा में 40 to 70 hours talk, it was about 475 rupees, and 70 to 90 तक 525 rupees, and more than 990 hours it used to be like 650 rupees for CC plus 1, or for fresher it was same. फिर जैसे विस्तारा में आई वॉज प्रोमोटेड टू कैबिन सीनियर और CC+1 आफ्टर 1 year, एंड माई सैलरी वॉज इंक्रीज एंड इट वॉज 39,050। मतलब आपका जैसे 1 साल कंप्लीट करते हो तब हमारी सैलरी हो गया था 39,000 फॉर 40 आवर्स। सो जैसे मैं रिलीज हुआ था, बहुत लोग का ये कॉमन क्वेश्चन है कि आप जब सैलरी मतलब आप रिलीज होते हो एज ए कैबिन क्रू फॉर एज ए फ्रेशर, तो आपको उस टाइम में सैलरी कितनी मिलती है। सो उसके ऊपर आप लगा सकते हो, आपकी अगर 40 आवर्स 50 आवर्स करते हो तो 70 आवर्स करते हो, तो आपको ले ओवर अलाउंस, आप महीने में अगर 3-4 ले ओवर भी करते हो, आप 3-4 स्टैंड बाई करते हो, आप 70 आवर्स करते हो, तो अराउंड आपको 60 आवर्स विस्तारा में आ जाते थे, 60,000 और 65,000 आ जाते थे। देन कमिंग बैक टू एयर इंडिया। एयर इंडिया में हम लोग क्योंकि हम विस्तारा से थे, तो हमारा जो बेसिक पे होता था, और नॉर्मली जो एयर इंडिया के लिए हायर हुए थे उनका बेसिक पे अलग होता था। हमारा जो बेसिक पे था वो हमारा ज़्यादा था, एंड एयर इंडिया के क्रू के कम थे, क्योंकि हम लोग का जो बेसिक पे था ऑलरेडी विस्तारा में ज़्यादा था, क्योंकि वी ऑल बे कैबिन सीनियर दे। बट यहाँ में आके हम लोग सब कैबिन क्रू हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा था कि आपको मिनिमम 3 years करने के बाद ही आपको कैबिन सीनियर का पोजीशन मिलता था। बट गुड थिंग ये था, वी ऑल केम फ्रॉम विस्तारा डायरेक्टली टू एयर इंडिया, इसलिए हमारा बेसिक पे होता था 40 आवर्स के लिए 45,000, जो कि मार्च 2025 के बाद हमारा सैलरी 1500 समथिंग इंक्रीज हो गया था, इसलिए हमारा सैलरी हो गया था 46,000। दैट मीन्स आप महीने में 1 घंटे फ्लाई ना भी करो, या 40 आवर्स फ्लाई करो, या 20 घंटे फ्लाई करो, 30 घंटे फ्लाई करो, आपको 46,000 मिलने ही मिलने थे अगर आप 40 आवर्स के नीचे फ्लाई करते हो। बट और भी एक क्या बोलूँ, बहुत अच्छी बात है एयर इंडिया। अभी मैं बोलूँगा कि इंडिया में सबसे बेस्ट और सबसे हाई सैलरी पे करते हैं एयर इंडिया,
तो क्योंकि उनके अलाउंसेस बहुत अच्छे हैं, उनके कुछ कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी है, जैसे कि स्टैंड बाई 4 आवर्स 5 आवर्स 6 आवर्स के होते हैं। तो स्टैंड बाई का अलाउंस होता है ओनली 300 रुपीज़, जो कि विस्तारा में हम लोग 4 आवर्स 3 आवर्स 1.5 आवर करके भी हमें 350 रुपीज़ मिलता था। देन उसके बाद यहाँ पे जो डोमेस्टिक लेबर का अलाउंस है वो मिलते हैं 2000 रुपीज़, और विस्तारा में हमें मिलता था 750 रुपीज़। फिर उसके बाद हमारे जो पर आवर का काउंट है, फॉर नॉर्मल कैबिन क्रू इट्स वेरी लेस इन एयर इंडिया, बट फॉर कैबिन सीनियर इट्स वेरी हाई। तो मैं उसका भी एक आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा कि किसको कितना मिलते हैं। जैसे कि 0 to 40 आवर्स तक हमारी नॉर्मल कैबिन क्रू के लिए काउंट होता है 375 रुपीज़। देन 40 to 70 आवर्स तक पर आवर का काउंट होता है 450 रुपीज़। 70 to 90 तक होता है 560 रुपीज़। एंड मोर देन 90 आवर्स आप करोगे तो फ्लाई, देन यू विल गेट 750 रुपीज़ पर आवर। बट दिस फॉर कैबिन सीनियर 0 to 40 475, एंड 40 to 70 hours 570 rupees, 70 to 90 hours 700 rupees, and more than 90 hours 950 rupees per hour। तो ऐसे ही SC एंड कैबिन मैनेजर के लिए भी अलग है, जो मैंने ऑलरेडी आपको ये चार्ट पे दिखाया है, आप ये देख सकते हो। सो आप अगर 90 आवर्स फ्लाई करते हो एक महीने में विस्तारा एंड टॉक अबाउट एयर इंडिया, सो आपकी जो बेसिक पे होते हैं, प्लस आपकी जो लेबर अलाउंस, प्लस आपकी स्टैंड बाय अलाउंस, प्लस आपकी एडिशनल फ्लाइंग अलाउंस, तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। प्लस मैं अभी बात करना चाहता हूँ इंटरनेशनल लेबर अलाउंस। When I was in Vistara, I used to fly on Airbus 320. Then after that, I got trained on Boeing 787. So when I used to fly to Singapore, I used to fly to Abu Dhabi, I used to fly to Jeddah, I used to fly to Mauritius, I used to fly to Paris, London, Frankfurt, and Vistara. So that time, highest I used to get layover allowance for 1 month. One layover. It used to be 9,500 for European sectors. But in Air India, if you do a 24 hours layover in Europe sector, you will get 175.5 USD, जो कि इंडियन करेंसी में होता है ऑलमोस्ट अराउंड 16,000। बट अगर वही आप 2 दिन का भी लेओवर होता है एयर इंडिया में, 3 दिन 4 दिन का भी मैंने लेओवर किया है, तो उसमें आपको एक लेओवर में ही मोर देन 35,000, मोर देन 40,000, 50,000 तक आपको एक लेओवर के अलाउंस आते हैं। मैंने बिफोर रिजाइनिंग एयर इंडिया, मैंने वियना में 4 दिन का लेओवर किया था, और फिर उसके बाद मैंने ज्यूरिक में 2 दिन का लेओवर किया है, मैंने मेलबर्न में 2 दिन का लेओवर किया है। तो जब मैंने वियना में लेओवर किया था 4 दिन का, तो मुझे उसका अलाउंस आया था 580 USD। दैट मीन्स ऑलमोस्ट अराउंड 40 to 45,000 के आसपास एक लेओवर का अलाउंस आया था INR में। तो ऐसे ही एयर इंडिया में मुझे हाई सैलरी आज तक मिला है 1.5 lakhs। तो जैसे कि आई यूज टू फ्लाई ऑन बोइंग 787, जो लोग बोइंग 777 एंड 787 या 350 फ्लाई करते हैं, सो इट्स वेरी गुड सैलरी, सो दे गेट वेरी गुड सैलरी इन एयर इंडिया। बट एयरबस में भी आजकल बहुत सारे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन आ चुके हैं, बहुत सारे लेओवर्स ओपन हो चुके हैं एयर इंडिया क्रू के लिए, तो दे आर ऑल्सो अर्निंग अ वेरी गुड सैलरी। देन और क्या ही बोलूँगा, जो आप लोग इतना क्वेश्चन पूछ रहे थे, आई डोंट नो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, बट स्टिल आई वुड लाइक टू क्लियर यू अगेन योर डाउट्स दैट आप अगर कोई फुल सर्विस एयरलाइन ज्वाइन करते हो, आपकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी बहुत अच्छी होती है। आई डोंट नो अबाउट लो कॉस्ट एयरलाइन बिकॉज आई नेवर हैव फ्लोन इन लो कॉस्ट। तो इंडिगो, अकासा या स्पाइस जेट के कंपेरेटिव मैं लाइक I am confidently can say you that you will get more salary in Air India, because now that is the only full service airline in India. So that's why if you want to start a career from Indian airline, then definitely you should join Air India if there is any hiring going on. So now I can understand that Air India is not hiring from very long time, but अगर लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है इंडियन कैरियर से स्टार्ट करने को, then definitely you should go for Air India.
अगर विस्तारा होता तो डेफिनेटली आप लोगों को मैं विस्तारा के लिए सजेस्ट करता या रेकमेंड करता, बट देर इज़ नो विस्तारा राइट नाउ, सो यू ऑल्सो जॉइन एयर इंडिया। क्योंकि लो कॉस्ट कैरियर में आपको बहुत सारी डेस्टिनेशन करनी पड़ती है, एक दिन में 2 3 4 सेक्टर तक, आपकी 5 सेक्टर तक करनी पड़ती है फ्लाइट, पर उसके बाद भी आपकी सैलरी बहुत लेस होता है। आप अगर बहुत सारी इंटरनेशनल सेक्टर भी करते हो महीने में, फिर भी आपको बहुत कम सैलरी मिलते हैं। बट जब मैं विस्तारा या एयर इंडिया में बोइंग फ्लाई करता था, जब यूरोपियन सेक्टर करता था, सो आई यूज टू गेट लॉट्स ऑफ ऑफ एवरी आफ्टर फ्लाइट्स, 3 days ऑफ, 2 days ऑफ, 4 days ऑफ। एयर इंडिया में तो 4 days तक मुझे ऑफ मिला था, विस्तारा में एवरी आफ्टर लॉन्ग सेक्टर 2 days या 3 days ऑफ मिल जाता था। दैट्स वाई आई यूज टू डू ओनली 5 or 6 फ्लाइट्स इन ए मंथ, एयर इंडिया एंड विस्तारा एज वेल। बट आप अगर कोई लो कॉस्ट एयरलाइन में करते हो, मोस्टली आपको एवरीडे फ्लाई करनी पड़ती है, आपको जो 7 days वीक ऑफ होता है वही आपको मिलता है। तो इसलिए लकीली अगर आप बोइंग में ट्रेन होते हो एयर इंडिया में आके, या कोई भी फुल सर्विस एयरलाइन में आके, सो इट्स गुड फॉर यू, यू विल गुड ऑन वेरी गुड अमाउंट, वेरी गुड सैलरी, एंड ऑल्सो यू विल गेट दैट मेंटल पीस ऑल्सो। सो दैट्स द थिंग। जो डाउट्स था, आई होप आई हैव क्लियर्ड योर ऑल डाउट्स, एंड और भी क्वेश्चन होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, एंड आपकी सारी डाउट क्लियर करने की ज़रूर ट्राई करूँगा। अभी आई एम स्टार्टिंग अगेन माई ब्लॉग्स अबाउट कैबिन क्रू, आगे भी ऐसे बहुत सारे ब्लॉग आते रहेंगे। मैं कैबिन क्रू के इंटरव्यू के ऊपर भी अपडेट आप लोगों को देते रहूँगा। और इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो होगा हाउ आई क्लियर द इंटरव्यू फॉर फिनएयर, एंड how did I apply, and how was the interview, how many candidates were there, everything I am gonna discuss with you in my next vlog. So stay tuned until my next vlog, and do watch this video from beginning till the end, and don't forget to subscribe my channel. So bye guys, I love you all, and we'll see you soon. Thank you.